Good evening, everyone. Good evening, ma'am. So today we are going to start with the collective noun. Good Okay. evening, ma'am. Good evening. So, what collective noun is? It's a special class or group. Okay. When we make a group and we name them special, it may be a group of people, group of animal, group of things. So we have given them one name. Okay. Let's suppose birds are there, flying birds. So we have given them name as a flock. ठीक है देखो let's suppose elephants हैं तो you know that these animals are elephant but when these elephants are in number तो we call it group ठीक है जैसे आप बोलते हो ना हाथियों का झुंड तो we have given them we have given name to this group as one ठीक है जैसे of cattles को हम herd देते हैं जो चरते हैं जो उड़ने वाले हैं उसको मोस्टली हम बर्ड देते हैं बट सम एक्सेप्शंस आर देयर लाइक फॉर आउल एंड पार्लियामेंट ऑफ आउल ठीक है फिर आउल में हम पार्लियामेंट यूज करते हैं दैट पार्लियामेंट नाउन collective noun is given to owl for other birds we can say that flock bed of oysters a school of fish so we have given इनके ग्रुप को बीज के ग्रुप को वी हैव गिवन नेम स्वान ठीक है हॉर्सेस को टीम आर्मी को सोल्जर्स आंट्स को भी सोल्जर्स ठीक है तो सम टाइम यू विल सी दैट लाइक आर्मी इज एन कलेक्टिव वर्ड ठीक है ये आंट्स के साथ भी यूज होता है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स ठीक है तो हम इसको दो नाउन्स के साथ कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं नाउ चेक आउट दिस पेज now first of all observe this ठीक है these are collective noun with using a gang of ठीक है gang of workmen a gang of criminals a gang of hoodlums a gang of thieves a gang of robbers or a gang of prisoners and one more a gang of laborer so one collective noun can be used with multiple एक collective noun कई सारे ग्रुप्स के साथ यूज हो सकता है ठीक है या फिर एक ग्रुप के लिए हम कई सारे कलेक्टिव वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं फॉर आंट्स वी यूज स्कूल ऑफ आंट्स ठीक है स्कूल एंड आर्मी कॉलोनी ये तीनों कलेक्टिव वर्ड्स हम आंट्स के लिए यूज करते हैं ठीक है सो फॉर वन वी आर यूजिंग 3 कलेक्टिव नाउन्स और एक सिंगल कलेक्टिव नाउन कई उसके लिए यूज हो सकता है नाउ अ डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्टर्स a draught of butlers a doctrine of doctors what do you mean by doctrine anyone डॉक्टर्स के ग्रुप को कहते हैं डॉक्टराइन yes a group which is highly qualified and specialized in their profession जो अपने काम में बहुत specialized है so the doctrine of doctors a draught of butlers who work in big house a drift of lecturers a dynasty of kings you might heard this word dynasty in your history book यस मैम of academics, a faith of merchants, a feast of brewers. Brewers होते हैं जो work in wine factories. A fighting of beggars, bhikhari, a gaggle of women. What this word is called? Women or women?
women. Women. बेटा when it is plural ना MEN तो we call it women, women, और otherwise WOMN women. ठीक है, so V sound is there in plural. A fortitude of graduate students, a flood of plumbers. Who are plumbers? मैम जो टैब वगैरह लगाते ठीक करते हैं. जो टैप्स वगैरह ठीक करते हैं, that is plumber. A flock of tourists. Most देखो flock is bird who move from one place to another. Birds के लिए use करते हैं ना flock, अभी आपने last slide में देखा था. Flock is used for tourist also. So tourist moves from one place to another. ठीक है, they do not fly. ये fly नहीं करते, but flock is used for tourist as well. A galaxy of governesses. Now in our next slide, this is collective noun for people. ठीक है, जब हम लोगों के ग्रुप को करते हैं तो we have given them these names. Now collective noun of things. A tube of toothpaste. ठीक है, एक टूथपेस्ट की जब हम टूथपेस्ट को कलेक्ट करते हैं, what name is given to that? Yes बेटा, a tube of toothpaste, a piece of jewelry. ठीक है, in jewelry so many things are added like gold, stone and gems. So when we combine them, a piece of jewelry, a pile of money. Pile होता है ढेर, जब एक चीज के ऊपर एक चीज होती है ना तो जैसे ढेर लगता है, that is a pile of money. A drop of rain, a bunch of keys. ठीक है, a group, so many keys are there, when we collect them, so that is bunch of keys. देखो why we have given them name. Let's suppose आपके पास एक सिंगल की रखी है, ठीक है, और these are many keys, और ये कीज हैं, आपने इनको, ये आपका प्लूरल है कीज, ये आपका कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, अगर आप अगर आप लेट्स सपोज आपको किसी को की मंगवानी है, तो हाउ यू विल टेल द अदर पर्सन कि आपको क्या लेकर आना है. अगर आपको पूरी की पूरी चाबियां चाहिए, ठीक है, आप बोलोगे चाबी का गुच्छा लेकर आओ, तो दैट मीन्स जो पर्सन लेकर आएगा वो पूरा का पूरा बंच लेकर आएगा ना. यस मैम. लेकिन अगर आप बोलते हो कीज ले आओ, तो मे बी वो अगर वो इसमें से 2 कीज ले आता है, तो इट इज पॉसिबल 2 कीज आर देयर. ठीक है, क्लियर द डिफरेंस, कि अगर आप बोलते गो एंड गेट कीज, तो इट माइट पॉसिबल कि अगर 5 कीज है तो वो 3 कीज ले आए या 4 कीज ले आए. लेकिन अगर आप उसको क्लियर बोल रहे हो जाओ चाबी का गुच्छा लेकर आओ, दैट मीन्स you have to take all keys all together. Clear why we are using collective noun and how they help us? Yes ma'am. Have you observed same thing is given different names. ठीक है, जब वो 1 होते हैं तो that is different, जो वो when that is many then again it is different. Just to make it easy to understand, we need to understand what is difference between collective noun और plural में क्या difference है. ठीक है, just think about this and try to answer. क्या difference है collective noun और plural में. यहाँ पे भी बहुत सबका collection है, यहाँ पे भी so many things are there, so what is the difference? Yes, who will answer? कलेक्टिव में ज्यादा आते हैं और प्लूरल में भी ज्यादा आते हैं, पर उसमें ग्रुप नहीं होता, कलेक्टिव में ग्रुप होता है. कलेक्टिव, जब हम कलेक्टिव बात करते हैं ना, देखो मम्मी आई. यस बेटा,
मैम कलेक्टिव में हम ग्रुप को कोई नेम दे देते हैं और प्लूरल कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। यस, हम यहाँ से एक से ज्यादा करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। ये वन है, ये मैनी है, तो मैनी में अगर मैं इतने लेती हूँ तो ये भी मैनी है, अगर मैं इतने लेती हूँ तो भी ये भी मैनी है, ठीक है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में हम सभी को वन यूनिट, हम इसको वन यूनिट बना देते हैं। क्लियर? ये सभी सोल्जर्स हैं, ये भी सभी सोल्जर्स हैं। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी सोल्जर्स तो कोई भी मैनी सोल्जर्स हो सकते हैं, कुछ उसमें से हो सकते हैं कि हमने किसी को ना भी लिया हो, बट हियर वी आर कंसीडरिंग देम एज अ वन ग्रुप, उसको हम वन यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब हम आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो हम यहाँ आर्मीज नहीं लगाते, वर्ड इज सिंगुलर, आर्मी, ठीक है। टीम है, देखो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। अगर टीम है, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम में वन भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो टीम, ठीक है। अगर ओनली वन पर्सन इज देयर टू प्ले, टू है दैट इज ऑल्सो थ्री टीम, सॉरी थ्री इज ऑल्सो इन अ टीम। अगर फोर प्लेयर्स हैं दैट इज ऑल्सो अ टीम। तो टीम इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट, एक यूनिट बना दी है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। क्लियर? यस मैम। सो टीम खुद एक सिंगुलर भी कंसीडर होता है और प्लूरल में भी टीम ही कंसीडर होता है, ठीक है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। तो कुछ कलेक्टिव नाउन है, दे वर्क एज अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल एज वेल। A deck of card and any other collective noun, a pack of cards or pack of cards, a bar of soap. Okay, if two bars are there, अगर दो soap है तो what we will say? Yes, मैम 2 bars of soap। yes, two bars of soap, a battery of tests, ठीक है। When tests are in a bundle now, when there are so many tests are there lined up, so that is battery of test. A chest of drawers, a ball of wool. देखो अगर इतनी वुल लेते हैं हम, ठीक है, अगर आप इतनी वुल कट कर देते हो दैट इज ऑल्सो वुल, ये भी ऊन है। यस मैम। और ये यस मैम। और ये पूरी भी ऊन है। अगर आप इफ यू आर सेइंग टू समबडी कि गो एंड गेट वुल, तो अगर उसने इतना कट करके आपको दे दिया तो यू कांट से कि आपने काम नहीं किया, इट इज ऑल्सो अ वुल। बट इफ यू आर सेइंग अ बॉल ऑफ वुल, गो एंड गेट अ बॉल ऑफ वुल, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीट बॉल, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को किस तरीके से चाह रहे हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, a fleet of ships, fleet of vehicles. So fleet is used with ships as well and vehicles as well. Vehicles और fleet का क्या, vehicles और ships का क्या होता है? Fleet. A gallon of gasoline. Okay, what is gasoline? Try anyone? क्या हो गया बेटा, आज बड़े सुस्त हो गए हो? Nobody is answering. कुछ हुआ है क्या? Are you fine? यस मैम। यस मैम। गैसोलीन जैसे केरोसिन और पेट्रोल होते हैं ना जो जल सकते हैं, तो गैसोलीन इज आल्सो सब्सटेंस एंड गैलन इज अ यूनिट टू मेजर, ठीक है। अ पेयर ऑफ ओके मैम। शूज, सम थिंग्स आर ऑलवेज टेकन एज ग्रुप, जैसे आप सॉक्स हैं, शूज है, आप कभी बोलते हो कि जो एक जूता ले आओ, एक जूता पहनना है। अगर आप शूज की बात करो, इट इज ऑलवेज अ पेयर, ओके, अ पेयर ऑफ शूज। जिस जिस चीज का दो चीजें होती ही है ना, आप जैसे सॉक्स हैं, आप सॉक्स अपने सिंगल सॉक्स तो नहीं लोगे ना कभी भी, you will always take two socks. Whenever two यस things मैम। are taken as यस one, मैम। always a pair is used, a pair of shoes, a pair of socks, a library of books,
a groove of trees, a roll of film. आपने पुराने कैमरे देखे, इनमें ये फिल्म्स होती थी, नेगेटिव्स होते थे, ये रोल करके खुलता था। नो मैम। पहले इतना इतना पोर्शन इसमें से बाहर होता था, तो ये ऐसे Yes, ma'am. ये ऐसे पूरा रोल होती थी। A piece of paper, a set of tools, an album of photographs. एक सिंगल फोटोग्राफ को you won't say album, ठीक है? When so many photographs are arranged, so we call it an album of photographs. Any question in this? No, ma'am. नो मैम। Okay, can I ask you Ma'am. आपको आपने पहले कलेक्टिव नाउन लर्न किए हैं? Can I ask you a few? यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक ये और कर लेते हैं, then we will start with some exercises. Some strange collective nouns, ठीक है? A tribe. A tribe word meaning of word tribe is आदिवासी, ठीक है? A tribe of goats. Kitten. What kitten is? किस एनिमल का? बिल्ली का बच्चा। Yes. मैम बिल्ली का बच्चा। तो बेटा say it young one. बच्चे को क्या बोलते हैं? Young one of cat. Okay. Kindle of kittens. Smoke of jellyfish. ये कुछ अजीब से नाम है given to these. ठीक है? People in church. Congregation of worshippers. जो चर्च में होते हैं ना, we have given them a very strange name. A murderers of crows. Murderer means मारने वाले। yes, who kill. So it is a very strange name, collective noun given to crows, and to this owl also, a parliament of owl. ठीक है? A school of proposies and intelligence of apes. So देखो जब herd word है ना, herd word is used with all this. इन सभी के साथ herd use होता है। आप जब अपने नोट्स बनाएंगे ना, यू कैन मेक इट टू वेज। या तो आप जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड पे किया था, कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल, ठीक है? कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल। आपको पता है बर्ड्स भी एनिमल में आती हैं। कलेक्टिव नाउन फॉर थिंग्स, ठीक है? और या फिर आप सेकंड तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से लर्न करें कि हर्ड वर्ड किस किस के साथ यूज होता है, ठीक है? यू हैव टू लर्न इट टू वेज, दो तरीके से। कॉलोनी, बैट्स, आंट्स, फ्रॉग्स, ठीक है? अ पैक ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से आप लर्न करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्लियर? यस मैम। Take screenshot of this. You have to write this in your notebook. Done, beta? यस मैम। यस। Okay, I'm just take screenshot of these pages also. मैम ये ऊपर वाला रब कर दो। Okay. मैम मैंने आपको बोला था कि पिछला काम ग्रुप में सेंड कर देना, आपने किया ही नहीं। बेटा मैं ना उसमें कुछ नोट्स और ऐड कर रही हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस। तो आपको कंप्लीट है ना, थोड़े से आप मुझे दिन दो, आई विल सेंड यू, ठीक है? पीडीएफ्स वगैरह बना के मैं उसमें थोड़े से और चीजें और ऐड कर रही हूँ। ओके मैम।
Okay, take screenshot of this page also and make sure आपको ना ये अच्छे से learn हो, क्योंकि so many collective nouns are there, ठीक है, और एक collective noun बहुत सभी के लिए यूज होता है, तो it might be confusing for you, तो थोड़ा थोड़ा करके learn करोगे ना तो it will be easy. Now take a screenshot of this page also. मैम कर ली। जो ये कलेक्टिव नाउन्स है ना, आप इनको कलर से ही यूज करना, ठीक है, ट्राई टू यूज सम कलर्स, ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं ये इजीली लर्न हो जाए। मैम जो आपने पीछे पेज किया था वो एक बार करना। दिस वन, एंड दिस वन। मैम मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। व्हाट अबाउट अदर्स, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, let's do one exercise today. देखो, one blank is there, so you have to fill, okay? और सभी participate करना। चलो, let's start. First one. मैम स्कूल। Yes, a school of fish. Next. लिटर। मैम लिटर। Litter. मैम Kindle. Litter. A dash of books. मैम फाइल। Pile. Pile. And one more is there. A library. लाइब्रेरी। Yes, a library of books as well. Yes, next. Ma'am, flock. क्लॉक। No. Gang. Troop of dancers. मैम See, two troops are there. One is TROOP. One is TR. ठीक है? This is for dancers and this is for soldiers. So learn it. Sheep. A flock of sheep. Flock. क्या बंद करता है? Next one. यह लाया से आप वाले हिलाता हो ना। हलाता होगा ना, तो चार्ज पे लगा दे नहीं तो। Yes, next one. 6th one. Gang. Pile. Ma'am, Gang gang. of singers. No. Ma'am, pile. Choir of singers. A bunch of grapes. This one. Bunch of grapes. Ma'am, army of soldiers। Yes, an army of soldiers. A dash of bread. gang. Yes, a loaf of bread. देखो loaf क्या होता है? ये पूरी बड़ी ब्रेड होती है ना, आप इसमें से पीसेस कट करते हो। जब आप ब्रेड लेकर आते हो ना, उसमें पीसेस कट होते हैं। सो दिस होल इज लोफ, ठीक है? ये पूरा आप अगर आपको 2-3 पीसेस लेने हैं, देन यू विल से गिव मी 2 पीसेस ऑफ ब्रेड और 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। सो दिस होल इज लोफ, ठीक है? Yes, a gang of thieves. Just 1 minute. दूसरे फोन पर कर दा। क्या आएगा?
नाल पैसे ने Okay, find out mistake. ओ आर्मी लिखा है, एन आर्मी आएगा। Yes, an army will be there. So this is mistake. ठीक है, और it might possible कि मैं लिख दूं a dash of soldier. Let's suppose मैंने यहाँ पे लिखा है an colony of soldiers. ठीक है, now find out mistake. मैम कॉलोनी Colony नहीं आएगा। won't be there. ठीक है, ये it will be army. तो आपको ऐसे sentences मिलेंगे where you have to find out mistakes. लेकिन आप इन mistakes को तभी अच्छे से find out कर पाओगे जब you are very clear with your collective noun. अगर आपको इसमें confusion है, अगर आपको ये doubt है अपने collective nouns में, तो it won't be easy. ठीक है, to find out mistakes. अभी है ना आपको ये कलेक्टिव नाउन्स जो अभी तक हमने एक्सरसाइजेस की हैं, ये आर जस्ट टू रिवाइज कि आपको लर्न हुआ है या नहीं हुआ है. दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम एक्सरसाइजेस वेयर यू हैव टू फाइंड आउट एरर्स. आपको जहां पे मिस्टेक्स निकालनी है. यस बेटा, पिछली स्क्रीन में 10 वाले का क्या है? किसका? 10th वाले का. 1 minute. In this screen, इस स्क्रीन में मैम यस. A gang of thieves. Thieves की क्या होती है? देखो, thieves हो गए, criminals हो गए. मैम ऑलमोस्ट है ना, जितने भी बुरे काम होते हैं उन सभी की गैंग है. चेक आउट दिस, एक्सेप्ट दीज टूज. अ गैंग ऑफ वर्कमैन, ठीक है, अ गैंग ऑफ लेबरर्स. बाकी सारे क्या हैं? प्रिजनर्स हैं, रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, हुडलूम्स हैं, जिन्होंने दोज हु आर इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ क्रिमिनल काम में इन्वॉल्व है. ठीक है, क्रिमिनल्स हैं. ठीक है, यस. तो इन सभी की क्या है? गैंग है. दे हैव देयर गैंग. सो गैंग collective noun is used with all these. Okay, those who are working in a factory, they have gang. Those who are involved in some bad activity, they have gang of. Okay, so now it's end of our class, time is over, and in next class please go through your collective noun so that we can do some advanced exercises. Clear? देखो, I am just giving you, showing you a sample for this. संदीप बेटा, क्लास लगी है. ऑनलाइन होनी है और डिलीट कर नहीं आ होना. फुकरी कर जड़ी yes, what happened? Look here. In this exercise, you have to find which word is collective noun. Yes, tell me. Yes, टीम। team word is collective noun. So this way you have to find out your collective nouns. ठीक है? In next class we will do it. All right? Have you written collective noun in your notebook? ओके Okay, मैम। you will write. All right. Ma'am. Any query? Any question you want to ask? No ma'am. All right, Beta. Bye bye. Good night. Bye bye ma'am. Good night. Good night.